السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان وقال تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقال عز وجل شأنه غير المغضوب عليهم ولا الضالين سامعین محترم، خواتین و حضرات، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ العزیز یہودیوں کی شرانگیزیاں اور شرارتیں اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطینی مظلوم مسلمان ان کی معاملت کی صورتیں، اس کے اوپر انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جس بات کو قرآن مجید نے یہودیوں کے متعلق مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ یہودیوں کا تعارف اور یہودیوں کے عقائد اور ان کی صفات اور یہودی سازشیں اور رویے وہ کیا ہے، مسلمانوں کو جاننا مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ قرآن مجید نے یہودیوں کا تعارف جو اپنی زبانی بیان کیا ہے، فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب۔ یہودی عیسائیوں کے متعلق یہ جملہ کہتے ہوئے سنائی اور دکھائی دیتے ہیں کہ عیسائیوں کا کوئی مذہب اور کوئی دین نہیں ہے، عیسائی کسی دین پر نہیں ہے۔ اور اسی طرح عیسائی کہتے ہیں وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہودی کسی چیز پر، کسی مذہب اور دین پر نہیں ہے۔ گویا کہ یہودی عیسائیوں کو لا دین اور بے دین، اور عیسائی یہودیوں کو لا دین اور بے دین سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی دونوں اپنے اقوال میں سچے ہیں کہ یہودی بھی کسی مذہب پر نہیں ہے اور عیسائی بھی کسی دین پر اور مذہب پر نہیں ہے۔ قرآن مجید کی
दूसरी आयत फरमाया वलन तरदान कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहूदी और ईसाई आपसे उस वक्त तक खुश नहीं हो सकते जब तक आप उनके दीन की, आप उनकी मिल्लत के इत्तिबा ना कर लें। गोया कि हम जो उनसे तल्लुकात बनाते हैं वो तल्लुकात में आपको लादीन और बेदीन बनाना चाहते हैं। यही वजह है कुरान मजीद ने तीसरे मुकाम पर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा, ऐ ईमान वालो यहूदियों को और ईसाइयों को अपना दोस्त मत बनाओ, इसलिए कि ये आपस में दोस्त भी हो सकते हैं लेकिन मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। शुरू में यहूदियों का और ईसाइयों का आपस का ताल्लुक एक सांप और न्योले जैसा था, हमेशा लड़ते रहते और इनकी जंगें रहती, लेकिन बाद में यहूदियों की साजिशों की वजह से, इनकी शरंगेजियों की वजह से ईसाई इनके कंट्रोल में आ गए और मुसलमानों के इन्होंने ईसाइयों को मुखालिफ किया। कुरान मजीद मुसलमानों के दुश्मनों को बयान करता है, फरमाया कि सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम और मुसलमान का लताजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद, सबसे बड़ा दुश्मन यहूदी है। और उसके बाद वो लोग जो अल्लाह का शरीक ठहराने वाले मुशरिक हैं, और इसके साथ साथ कादियानी, ये इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मुसलमानों को ज़रूरत इस अमर की है कि अपने दुश्मनों को पहचाने और फिर उसी के मुताबिक अपनी तारीख और अपनी दास्तान को मुरतब करें। कुरान मजीद ने एक 5वें मुकाम पर बयान फरमाया है, यहूदियों के मुतल्लक ये वाज़ेह तालीमात है कि यहूदियों की सिफात और यहूदियों की हरकत व सकनात क्या हैं। कुरान मजीद ने फरमाया वकालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदियों का ये बुनियादी अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, इब्नुल्लाह है। हालांकि कुरान मजीद ने इसकी वाज़ेह तौर पे नफ़ी की है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह एक और यकता है, अल्लाह बेनियाद है, अल्लाह के लिए कोई औलाद नहीं, अल्लाह के लिए उसूल व फुरू नहीं है, अल्लाह के लिए कोई बराबरी नहीं है। और इसी तरह यहूदियों का इसी तरह अकीदा बयान फरमाया वक़ालू लन यदखुल जन्नत इल्ला मन कान हुदन औ नसारा, यहूदी कहते हैं कि जन्नत में सिर्फ यहूद व नसारा ही जाएंगे। हाँ, वो यहूदी जो अपने अकायद और अपने अमाल से हटे, उनके लिए जहन्नम पहली बात है नहीं। अगर जहन्नम में सजा होगी लन तमस्सन नार इल्ला अय्यामम मादूदात, मगर चंद गिनती के चंद गिने चुने दिन होंगे कि जिसमें वो जहन्नम में जाएंगे। इसके अलावा जन्नत असल यहूदियों के लिए है और जहन्नम गैर यहूदियों के लिए है। अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि आप मौजूदा हालात को पढ़ने से पहले कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने दुश्मन को पहचानने की कोशिश करें। आपका दुश्मन, उसके अंदर बेशुमार ऐसी साजिशें और ऐसी शरारतें छुपी हुई हैं जो आपको और मुझे नजर नहीं आती। फरमाया बाखिदिहुमुर रिबा, सूद का जितना भी सिस्टम देने वाले अगर कोई लोग हैं तो वो यहूदी हैं। यहूदियों ने ईसाइयत को फतह किया और ईसाइयत को फतह करने के बाद
इनको अपना अल्लाह कार बनाया और ईसाइयत में कई किस्म के बुरे अमाल उनकी रूपों की। ये हुर्रियत फ़िक्र का फितना दरअसल यहूदियों का फितना है कि फ़िक्र में आज़ादी पैदा की जाए और आज़ादी का फिर जो दायरा ये देते हैं। हमारे तो मुसलमान, ये सादा सिंपल मुसलमान जो तसव्वुर आज़ादी का, हुर्रियत फ़िक्र का सिर्फ जुमला लेते हैं, इन्हें नहीं अंदाज़ा कि हुर्रियत फ़िक्र और इसी तरह तसव्वुर आज़ादी का नारा यहूदी नारा है, कितना ख़तरनाक नारा है। आज़ादी के फिर 5 दायरे बनाते हैं कि आज़ादी से मतलब यह है कि आप उन तमाम पाबंदियों से इंसानों को आज़ाद करो जिन पाबंदियों की वजह से यहूदी अज़ाइम, यहूदी साजिशें नाकाम हो रही हैं। उनमें से सबसे पहली पाबंदी मज़हब की पाबंदी, मज़हब की पाबंदी को उठाया जाए और मज़हब का तसव्वुर सिर्फ वही है जो यहूदियत का है और यहूदियत का भी तसव्वुर वही है जो मौजूदा ज़माने का बनावटी तसव्वुर है। गोया कि मज़हब की पाबंदियों से इंसानों को आज़ाद करो। दूसरा दायरा फितरत की पाबंदियों से इंसान को आज़ाद करो कि इंसान के अंदर जो हया है, इंसान के अंदर जो खौफ है, इंसान के अंदर जो तकवा और अल्लाह का डर है, उसको ख़त्म किया जाए। फिर उसके बाद तीसरा इनकी तसव्वुर आज़ादी और हुर्रियत फ़िक्र का जो दायरा कार है वो क्या है कि बड़ों के आला अक़दार, आला रिवायात, उनकी पाबंदियों से इंसानों को आज़ाद किया जाए। गोया कि आला रिवायात की कोई हैसियत नहीं है, आला अक़दार की कोई हैसियत नहीं है, बड़ों का कोई एहतराम और बड़ों की कोई इस तरह की वैल्यू नहीं है। फिर इसके बाद चौथा नारा जो इन्होंने हुर्रियत फ़िक्र के नाम से लगाया, आज़ादी के नाम पे लगाया कि मुल्क की पाबंदियों की कोई ज़रूरत नहीं है, पाबंदियाँ वही हैं, ला वही है, कानून वही है, सिस्टम वही है जो हम देंगे और हम बनाएंगे। और एक किताब में ये लिखते हैं कि यहूदियों की मिसाल पूरी कायनात के ममालिक, पूरी कायनात के इंसानों के मुकाबले में एक इंजन की सी मिसाल है। मतलब यह है कि यहूदी चलेंगे तो गाड़ी दुनिया की चलेगी, इंजन चलेगा तो दुनिया की ट्रेन चलेगी, इंजन नहीं चलेगा तो ट्रेन नहीं चल सकती। मतलब यहूदी दुनिया को चलाएंगे तो दुनिया चल सकती है, बसूरत दीगर दुनिया नहीं चलेगी। हुर्रियत फ़िक्र का ये 5वां दायरा जो आपके सामने रख रहा हूँ, मुआशरती पाबंदियों से इंसान को आज़ाद करना, इस 5वें दायरे में आके ये मुश्किलात का शिकार हो गए। हत्ता कि इन्होंने मज़हब से भी आज़ादी, फितरत से भी आज़ादी, आला रिवायात और इक़दार से भी आज़ादी और मुल्की कवानीन और ला से भी इन्होंने आज़ादी का नारा जो दिया है और उसमें ये कामयाब हो चुके। लेकिन मुआशरती पाबंदियों से जो आज़ादी, उसमें अभी तक ये परेशान है। ये चाहते हैं कि इंसानों को कपड़ों से, लिबास से नंगा कर दिया जाए और इंसान जानवरों की तरह नंगे होकर चले। ये चाहते हैं कि 2 मर्द अगर आपस में रज़ामंद हैं तो वो आपस में शादी कर सकते हैं। मर्द और ख़वातीन का इख्तिलाफ कोई माना नहीं रखता। गोया कि ईसाइयत पर जिस वक्त इन्होंने कंट्रोल किया, ईसाइयत के कंट्रोल के बाद ईसाइयत को इन्होंने अपना अल्लाह कार बनाया और ईसाइयत को मुसलमानों का बड़ा दुश्मन बनाया। ये यहूदियों की बड़ी साजिशों में से बड़ी साजिशें हैं कि इन्हीं के बलबूते फिर मईशत में ये सूद लाने वाले ये भी यहूदी हैं और इसी तरह फहाशी और उरियानी का तूफान बदतमीजी मुआशरे में फैलाने वाले ये भी यहूदी हैं। लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म के फितने जो मुआशरे को देने वाले हैं ये भी यहूदी हैं। इन्होंने यहूदियों को, इन्होंने ईसाइयों को पहले अल्लाह कार बनाया। आप देखते हैं कि ईसाइयत यहूदियों का अल्लाह कार बनने से पहले मज़हब को बराबर तस्लीम करने वाली थी। आप ईसाइयत को देख लें कि ईसाइयत में फहाशी और उरियानी नहीं थी। ईसाइयत को आप देख लें कि उनके ममालिक में बाकायदा
सूदी मईशत नहीं थी। ये यहूदी हैं कि जो युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, अल्लाह के नूर को, कुरान और सुन्नत को, इस्लाम को अपनी फूंकों से बुझाना चाहते हैं, जो कि इनका सिर्फ ख्याल हो सकता है, इनका सिर्फ वाहम हो सकता है, तवाहम परस्ती हो सकती है। हकीकत में अल्लाह ताला ने यह बाकायदा ऐलान किया है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, अल्लाह ने दीन को भेजा है, इस्लाम को भेजा है, ताकि तमाम अदियान के ऊपर ये गालिब आ जाए, और तमाम अदियान के ऊपर सिर्फ हकीकत के एतबार से नहीं, नकल के एतबार, कुरान और सुन्नत के दलाइल के एतबार से नहीं, तरीखी एतबार से, अकली एतबार से, लॉजिक के एतबार से, मुशाहदात और तजर्बात के एतबार से, सियासी एतबार से, मुआशी और इक्तिसादी एतबार से, इनफरादी और इज्तिमाई एतबार से, इस्लाम अल्लाह के फजल करम से, दलील के एतबार से आज भी गालिब है, दलील के एतबार से कल भी गालिब था, दलील के एतबार से आइंदा भी गालिब रहेगा। दलील के मैदान में इस्लाम को ना हराया जा सकता है, दलील के मैदान में मुसलमान को भी हराया नहीं जा सकता। इस्तदलाल के मैदान में भी मुसलमान का आज भी गलबा है, कल भी गलबा था। हाँ, जानवरों की तरह लाठी के कानून के तौर पे ये चंद एक मुल्कों में जुल्म सितम तो कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम को, मुसलमान को दलील के मैदान में कभी भी मगलूब नहीं कर सकते। यही वजह है फरमाया अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। इस साजिश के लिए और इन शरारतों के लिए इसने बड़े बड़े ममालिक का इंतखाब किया, जिसमें से बरतानिया और इसी तरह अमेरिका और इसी तरह जर्मन और इसी तरह फ्रांस, ये वो बुनियादी ममालिक हैं जहां से यहूदी साजिशें चलती हैं, जहां से यहूदी फलसफे चलते हैं। इन ममालिक में सबसे बड़े ममालिक जहां से ये फ्रांस और जर्मन, जहां से ये लोग बाकायदा अपनी टीम तैयार करते हैं और उधर से आगे चल के बरतानिया और अमेरिका को अपना अलाकार बनाते हैं। अमेरिका इनके सामने एक जानवर की सी हैसियत रखता है, और इसकी मिसाल आप उस कौल से लगा सकते हैं जिस वक्त इसने पेंटागन के ऊपर हमला किया और साथ ही इन्होंने अमेरिका को धमकी दी कि अगर तू हमारे दरमियान में हायर हुआ, अगर तू हमारे दरमियान में रुकावट बना तो वाशिंगटन के अंदर आग जला देंगे, आग लगा देंगे और अमेरिका को हस्ती से मिटा के रख देंगे। यही वजह है कि अमेरिका भी इसका अल्लाहकार है, ईसाइयत भी इसका अल्लाहकार है। असल पीछे बुनियादी साजिश वो यहूदी चलने वाले हैं, और यहूदियों के मिशन में बुनियादी 3 मिशन जो वो शुरू दिन से लेके आ रहे हैं और शुरू दिन से लेके चलना चाहते हैं, उनमें से सबसे पहला मिशन यह है कि इस्लाम और इस्लामी ममालिक को दुनिया कायनात से खत्म किया जाए। उसके लिए सबसे पहले इन्होंने फलस्तीन को पकड़ा और इसके साथ साथ उर्दन को पकड़ा, लबनान को पकड़ा और इसी तरह फलस्तीन को पकड़ा, तुर्कियों को पकड़ा। ये वो शाम जिसके मुतल्लिक नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर की बशारत दी थी कि एक गिरोह शाम के इलाके में हक पर रहेगा, इस्लाम पर रहेगा, और वो रहेगा, इस्लाम भी रहेगा, इस्लाम जिंदा और जावेद रहेगा। और शाम से मुराद जिस वक्त नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत दी थी, उससे मुराद शाम में सिर्फ ये मौजूदा शाम का इलाका नहीं है, बल्कि उर्दन भी उसी के अंदर आता है, लबनान भी उसी के अंदर आता है, फलस्तीन भी उसी के अंदर आता है, और इसी तरह मौजूदा शाम भी उसी के अंदर आता है। और साथ फरमाया था रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब शाम में खराबी हो जाए, जब शाम में तबाही हो जाए, जब शाम में जंग शुरू हो जाए तो समझ लो कि क़यामत करीब है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बाकायदा बशारत दी, तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत भी सामने रखें और आपकी क़यामत की निशानी भी सामने रखें। तो यहूदियों ने साजिश के जरिए सबसे पहले शाम के इलाकों को तोड़ने की कोशिश की, फलस्तीन में मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश की। उसके बाद दूसरी जो बड़ी साजिश थी वो इंतहाई खतरनाक किस्म की साजिश, वो ये कि ईसाइयों को बाकायदा मुसलमानों का दुश्मन बनाया, ईसाइयों को बाकायदा मुसलमानों के मुकाबले में खड़ा किया। ये बहुत बड़ी साजिश थी।
سے بڑا مذہب سمانی مذاہب میں عیسائیت مذہب ہے. عیسائی اگر اسلام کے مخالف ہو جائے تو گویا کہ آدھی سے زیادہ دنیا اسلام کے مخالف ہو گئی. جب عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف اس نے استعمال کیا تو گویا کہ آدھی سے زیادہ دنیا اسلام اور مسلمانوں کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع ہو گئی. اور اس کے بعد تیسرا جو بڑی انہوں نے ساتھ ساتھ سازش اس نے کی وہ یہ کہ یہودیوں نے یورپ میں اور ویسٹ جسے کہتے ہیں ان کے تمام ممالک کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کی. جیسا کہ میں نے کہا کہ برطانیہ اور امریکہ ان کے دو بڑے ہتھیار ہیں جو ان کے عملی ہتھیار ہیں. عملی ہتھیار دو ہیں جو برطانیہ اور اسی طرح امریکہ ہے. فکری ہتھیار بھی اسی طرح کے دو ہیں جو جرمن اور فرانس. وہاں فکری فلسفے فکری فتنے اور عقائد کے فتنے وہاں بنائے جاتے ہیں اور اسی طرح عملی فتنے امریکہ اور برطانیہ کے اندر چلائے جاتے ہیں. اور ان کی سازش ہے باقاعدہ کہ ان کی سازشوں میں ایک بنیادی سازش مسجد اقصی کو گرانا ہے, گنبد صخرہ کو گرا کر اس کے اوپر معبد سلیمانی بنانا ہے تیسری دفعہ. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس طرح ہمارے ہاں بیت اللہ کی اہمیت ہے ان کے ہاں ہیکل کی وہی اہمیت تھی. 19 برس گزر گئے, 19 صدیاں گزر گئی. سن 70 عیسوی میں یہ معبد خانہ گرا دیا گیا. اس کے بعد اپنے یہ معبد خانے سے باقاعدہ محروم ہے. اسی کے لیے سازشیں کرتے ہیں کہ بیت اللہ کو جس طرح بیت اللہ کی حیثیت ہے مسلمانوں کے ہاں اسی طرح ان کی حیثیت ہے ہیکل سلیمانی کی. اور مسجد اقصی کو گرا کر گنبد صخرہ کو گرا کر پھر وہاں ہیکل سلیمانی یہ باقاعدہ بنانا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے چھوٹے چھوٹے کبھی پتھر بھی رکھتے ہیں, کبھی رکاوٹوں کے طور پہ پتھر جمع کرتے ہیں, کبھی اس کے لیے پورا ماحول بناتے ہیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جو مسلمان ہیں ان کے اندر ایمانی بھی قوت ہے, مالی بھی قوت ہے, جذبہ جہاد بھی ہے, موت سے ڈرتے بھی نہیں ہیں, جنت کو ہاتھ میں سامنے رکھ کے آگے چلتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے یہ باقاعدہ اس طریقے سے ان کا مقابلہ کرنے والے. اور یہ کتنی خطرناک یہ قوم تھی, اسی کی وجہ سے ہٹلر نے, آپ کو تاریخ میں دو قسم کے اقوال ملیں گے کہ 60 لاکھ یہودیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا ہے. ہٹلر نے ان کی شرارتوں کی وجہ سے, ان کی شرانگیریوں کی وجہ سے 60 لاکھ یہودی اور ان کو کس طرح کاٹا ہے. آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی عورتوں کے بال کاٹ کے انہوں نے باقاعدہ کلین بنائے, ان کی ہڈیوں اور ان کے گوشت اور ان کے خون کا ایک مایا بنا کے اپنے کھیتوں کی کھاد بنائی, ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا ہے. ہٹلر نے ایک قول کے مطابق 40 لاکھ, بھلے بھائی 40 لاکھ ہو 60 لاکھ ہو, ہٹلر نے ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے. اس وقت اسرائیل تقریباً 3 یا 4 ملین اسرائیل کے اندر یہودی ہوں گے. اور ان کی سازش ہے کہ اس وقت دنیا کائنات میں 1.5 کروڑ کے قریب جتنے یہودی ہیں ان کو اکٹھا کر کے اسرائیل کے اندر لایا جائے اور پھر اس کے بعد یہودی سازشوں کو آگے چلایا جائے. عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ صرف زمینی اعتبار سے شرانگیز لوگ نہیں ہیں, فتنہ پرور لوگ نہیں ہیں. ان کے عقائد دیکھ لو, عقائد میں دیکھیں اخذہم الربا, سود کو معیشت میں لانے والے, لا یکتمون الحق, حق کو چھپانے والے, اور الا مانیہ, اپنی خواہشات کے بت کو چلانے والے, نحن ابناء اللہ, اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہنے والے, واحباہ, اور اس کا محبوب کہنے والے, فبما نقض میثاقہم لعناہم, اپنے کیے ہوئے وعدوں کو توڑنے والے. لعنت پھٹکار انہی کو اوپر ہے. یحرفون الکلم عن مواضع, کلمات کو آسمانی کتابوں کے اندر تحریف کرنے والے. ونسوا حظا مما ذکروا به, اللہ کی طرف سے نصیحت کی گئی اس کو بھلا دینے والے. یکفرون بآیات اللہ, اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے والے. یقتلون النبیین, انبیاء کو قتل کرنے والے. قد اوذی موسیٰ, اپنے نبی کو بھی نہیں چھوڑنے والے, اپنے نبی کو بھی سزائیں دینے والے تھے. لن نؤمن لک حتی نری اللہ, جیب و غریب قسم کے شبہات اور اعتراضات لا کے یہ سوال کرنے والے کہ ہم کسی مذہب اور اسلام اور دین کو نہیں مانتے تب تک جب تک اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں. اور نبی کائنات کو بھی مذاق کرنے والے, رائنا کا سیگا کہہ کے نبی کائنات کو بکریوں کا چرواہا کہنے والے, کبھی حتتن کا لفظ کہنے والے, کبھی کچھ حرمت تعلیم الشہومہ, چربی ان کے اوپر حرام کی گئی,
उन चर्बी को हलाल करने वाले, सम्माउन लिल काज़िब, सिर्फ झूठी बातों को सुनने वाले और झूठ को प्रमोट करने वाले, ये तमाम की तमाम शक्लें अगर किसी में है तो यहूदियों में है। और यहूदियों ने हम मुसलमानों को 4 ब्लाकों में तकसीम किया, और हम हैं कमले हैं, हम हैं सादा हैं, हम हैं जो जाहिल है, जो यहूदियों की साजिश की वजह से 400 साल पहले इन्होंने मुसलमानों को 4 ब्लाकों में तकसीम किया। उनमें से पहला ब्लाक कहने लगे कि मुसलमान पूरी दुनिया में 4 ब्लाकों में तकसीम है। पहले मुसलमानों की किस्म वो है जो बुनियादी मुसलमान हर चीज पे कुरान और सुन्नत की दलील मांगते हैं, कहा ये तुम्हारे लिए खतरनाक लोग हैं। दूसरे वो लोग हैं जो इनकी सफों की मुआमलत करने वाले हैं, ये भी तुम्हारे लिए खतरनाक हैं। पहलों को कत्ल करो और उनको जेलों में डालो, दूसरों के अंदर तवाहुम और इसी तरह इंतशार पैदा करो। तीसरा ग्रोह लादीन सेकुलर लिबरल किस्म का ग्रोह, फरमाया कि ये लोग तुम्हारे हक में बड़े बेहतर हैं, इनको प्रमोट करो, इनको तरक्की दो, इनको सियासत में लाओ, इनको बड़े मनसब में लाओ, ओहदों में लाओ, और उसके बाद रोशन ख्याल तबका वो इनकी पुष्ट पनाही पे खड़ा करो। आज वाकई मुसलमान इन 4 ब्लाकों में है, मुसलमान 4 ब्लाकों में है। यही वजह है कभी फलस्तीन के नाम पे, कभी बर्मा के नाम पे, कभी कश्मीर के नाम पे, कभी लबनान के नाम पे, कभी तुर्क के नाम पर पूरी दुनिया में मार खा रहे हैं। आज जरूरत इस अमर की है कि मुसलमान बैतुल मुकद्दस के नाम पे इकट्ठे हो जाए, इन्नमल मोमिनूना इख्वा के नाम पर इकट्ठे हो जाए। मसल मोमिनीना, मुसलमानों की मिसाल कल जासदिल वाहिद, इसके मिसाल नाम पे इकट्ठे हो जाए। कल बुनियान एक शीशा पगलाई दीवार की तरह है, देखने में ये 2-4 नजर जिस्म आते हैं, हकीकत में एक जान है। जरूरत इस अमर की है फलस्तीनियों के नाम पे आप मुसलमान एक हो जाएं, दुआएं उनके लिए करें, माली तौर पे उनके लिए मुआमलत करें, और इसी तरह मीडिया पे आवाज उठाएं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आवाज उठाएं, प्रिंट मीडिया पे आवाज उठाएं, सोशल मीडिया और मीडिया पे आवाज उठाएं। जैसे कैसे भी हो उनके साथ मुआमन बन के इत्तफाक और इत्तेहाद अपनाकर उनके साथ खड़े हो जाओ, इसी में भलाई है। वान तुमुल आज़ौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम अगर मोमिन हो तो गलबा तुम्हारा ही है, अगर रसूल कायनात के उम्मती हो तो गलबा तुम्हारा है, कुरान और सुन्नत के दाई हो तो गलबा तुम्हारा है। इयंसुरकुमुल्लाह फला गालिब अलैकुम, अल्लाह के दीन को गालिब करना चाहोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। और यहूदियों के मुतल्लिक बताया, अहरसन नास अला हया, दुनिया में सबसे ज्यादा जिंदगी का हरीस अगर कोई दुनिया में है तो वो यहूदी है। यहूदी दुनिया का हरीस, जिंदगी का हरीस, मौत को कभी गले नहीं लगा सकता, जिहाद के मैदान में आपका मुकाबला नहीं कर सकता, तीर तलवार के मैदान में आपके साथ जीत नहीं सकता। अल्लाह के रसूल का फरमान है 10,000 मुसलमान सापर शाकर अल्लाह के दीन को मानने वाले एक मैदान में इकट्ठे हो जाएं, कोई टेक्नोलॉजी ना हो, कोई कुछ कुव्वत ना हो, ईमानी कुव्वत हो, साबर शाकर हो, अल्लाह पे तवक्कल और भरोसा करने वाले। अल्लाह के नबी ने फरमान, अल्लाह के नबी ने पशीन गोई दी, फरमाया 10,000 मुसलमान साबर शाकर एक मैदान में सारे काफिरों के मुकाबले में आ जाए तो मुसलमानों को कभी भी अफरादी कुव्वत के एतबार से शिकवा नहीं हो सकता कि हम थोड़े थे इसलिए वो गालिब आ गए, हम कमजोर ईमान वाले थे इसलिए गालिब आ गए, वरना अफरादी कुव्वत भी है, टेक्नोलॉजी की कुव्वत भी है, और इसी तरह जज्बा जिहाद भी है, जुर्रत भी है। और खुसूसन उनके लिए आखिरी बात, 2 मुल्क इंतहाई खतरनाक, एक पाकिस्तान और दूसरे अफगानिस्तान। पाकिस्तान में भी पंजाब का इलाका सबसे ज्यादा यहूदियों को खटकने वाला है। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तानी जैसे कैसे भी सही, इनके अंदर जज्बा जिहाद है, दावत व तबलीग है, और अभी भी इनके अंदर ईमान है, अभी भी इनके अंदर इत्तेफाक इत्तेहाद का जज्बा है। ये खड़े हो जाते हैं, कश्मीर के नाम पे खड़े हो जाते हैं, अफगानिस्तान के नाम पे खड़े हो जाते हैं, और इसी तरह फलस्तीन के नाम पे खड़े हो जाते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला ये जज्बा ईमानी इसी तरह कायम रखे, कमजोर ना होने दे, और हम मुसलमानों को, फलस्तीनी मुसलमानों की मदद के लिए हमारा इंतखाब फरमाए। और आखिर में हम अपने हुक्मरानों को ये अपील करते हैं, अपने हुक्मरानों से खुदारा अपनी आखिरत की फिक्र करो, जबान से कुछ बयान दो, बयानिया दो, और इसी तरह अमली तौर पे जिस तरह अमेरिका ने बैरी बेड़ा वो भेजा है, जलाई है आग, इसी तरह आप भी कुछ ऐलान करो। इंशाअल्लाह अज़ीज आपके मुकाबले में ये 3,313 हो
ہم مقابلہ 1000 کا ہو پھر بھی نہیں جیت سکتے, 3000 کے مقابلے میں 10,000 ہو تو پھر بھی نہیں جیت سکتے, 10,000 کے مقابلے میں 3 لاکھ ہو تو پھر بھی نہیں جیت سکتے. یہ ہماری تاریخ ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. زندگی شعور سے. الحکمہ انٹرنیشنل.